So in this video lecture we'll be proving the most important theorem, which is Euler's theorem, and whose statement is if n is a positive integer, and a is any integer such that whose HCF with n is 1. This is not bracket, this is HCF. a और n का HCF जो है वो 1 है and n is given to be greater than 1. Then we have to prove a raised to the power phi of n, this will be congruent to 1 modulo n. a raised to the power phi of n will be congruent to 1 modulo n. So first of all consider g. g में वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, g में वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो n से स्ट्रिक्टली लेस हैं. जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि 6 अगर हमें निकालना है तो 6 से पीछे कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. उसी तरह से g में वो सारे नंबर्स आएंगे जो n से लेस है और जिनका HCF जो है वो n के साथ 1 आ रहा है. जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में भी आपने देखा था कि 1 और 5 ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे 6 से लेस जिनका HCF 6 के साथ 1 आ रहा था. सो ये हमारा G सेट है. इस तरह से मैंने डिफाइन किया है. R belongs to natural number such that HCF of R and n is 1 and R is strictly less than n and greater than equal to 1. Then this G is a group under multiplicative modulo n with identity element 1. Therefore order of such group is always phi of n, which is Euler's function, which is Euler function. ठीक है, इसको मैं पहले ही करवा चुका हूँ. So case 1 is when n is equal to 1. When n is equal to 1, then phi of n को रख दो यहाँ पे 1. Phi of n is equal to phi of 1 and phi of 1 को हमने डिफाइन किया हुआ है 1, Euler's function. Phi of 1 is 1. Therefore a raised to the power phi of n will be a raised to the power 1 because phi of n is 1. And a is always congruent to 1 modulo 1 since 1 divides 1 जो है वो हर एक since 1 जो है वो हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है. 1 divides for every integer. आप डेफिनेशन देख लो डिवीजन की. A can be written as a dot 1. So 1 divides every integer. तो 1 जो है वो a minus 1 को भी डिवाइड करेगा because a minus 1 is also an integer. If a is an integer then a minus 1 is also an integer. So 1 divides a minus 1 as well. इस रिजल्ट का हमने यूज किया है. So 1 divides a minus 1. तो हम पिछले वाले रिजल्ट का यूज करेंगे that n divides a minus b if and only if a is congruent to b modulo n. उसका हम रिजल्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि this a will be congruent to 1 modulo 1. This a is congruent to 1 modulo 1. So उसी रिजल्ट का हमने यूज किया यहाँ पे n divides a minus b if and only if a is congruent to b modulo n. So a raised to the power phi of n is nothing but a raised to the power 1 because phi of n is 1 and a is congruent to 1 modulo n. So this a is congruent to 1 modulo n. तो हमने गिवन थ्योरम को प्रूव कर दिया. यहाँ पे n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करो तो we have to prove a is congruent to 1 modulo 1. This is what we had to prove and this is what we have proven that a is congruent to 1 modulo 1. Now consider the case second when n is greater than 1. Then by division algorithm on a and n there exists quotient q1 r1 such that देखो डिवीजन एल्गोरिथम दिस इज a दिस इज n. जब हम a को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ क्वोशेंट मिलेगा और यहाँ पे हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा r1. ठीक है. सो देयरफॉर a can be written as n q1 plus r1 where this remainder r1 is strictly less than n, डिवाइजर से लेस हो and greater than equal to 0. ये बाई डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज है. इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहली प्रीवियस वीडियोज में. नाउ r1 is greater than equal to 0. if r1 happens to be 0 then यहाँ पे r1 को 0 रखो तो क्या मिलेगा हमें a is equal to n q1. So by definition of division
दिस एन विल डिवाइड ए, डिवीजन की जो डेफिनेशन है दैट कौन सी डेफिनेशन, डिवीजन की कौन सी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन, ए डिवाइड्स बी। अब हम इस डेफिनेशन का यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसी डेफिनेशन का हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसी डेफिनेशन का हमने यूज किया, तो इसका मतलब ये है कि एन डिवाइड्स ए। अगर एन जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए और एन का जो एचसीएफ है वो एन ही आएगा। यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हो, समझ सकते हो। इफ 2 डिवाइड्स 4 देन 2 और 4 का जो एचसीएफ है वो 2 ही आएगा। जैसे 3 डिवाइड 6, 3 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा, 3। उसी तरह से यहाँ पे n जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो n और a का एचसीएफ क्या आएगा, ये n ही आएगा। जो डिवाइड कर रहा है, जो फैक्टर डिवाइड करेगा वही इसका एचसीएफ आएगा। सो एचसीएफ ऑफ a and n विल बी n, एंड वी नो n इज ग्रेटर देन 1, वी नो n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1। सो देयरफॉर HCF of A and N is greater than 1 which is a contradiction, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि A और N का जो HCF है वो 1 है, और ये कह रहा है कि HCF of A और N जो है वो 1 से बड़ा है। तो therefore R1 is 0 is not possible, it means that R1 has to be non-zero, therefore R1 is greater than equal to 1 and less than N, because R1 is an integer, R1 is integer और R1 is greater than 0। अब equal to 0 is not possible, so R1 will be greater than 0, but R1 integer है, तो 0 के बाद कौन सा integer आता है, 0 के बाद 1 आता है integer, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि R1 has to be greater than equal to 1 और less than N। ठीक है, क्योंकि R1 जो है, R1 is greater than 0, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, R1 is greater than 0 and less than N, but R1 integer है, तो therefore R1 is greater than equal to 1 and less than N। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने R1 और N का जो HCF है उसको मान लिया M। सो लेट M इज इक्वल टू HCF ऑफ R1 एंड N। सो HCF की डेफिनेशन ये होती है, D इज HCF ऑफ A एंड B इफ एंड ओनली इफ D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। ठीक है, वैसे इससे आगे भी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इतनी ही जरूरत है इसकी HCF की डेफिनेशन की। इसका मतलब यह है, बाय डेफिनेशन ऑफ HCF दिस R1 विल डिवाइड दिस M विल डिवाइड R1 and this M will divide N, इस definition के according। So M divides R1, so since A is NQ1 plus R1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A minus NQ1, तो यहाँ पे R1 को रिप्लेस करो इस वैल्यू से, so M divides A minus NQ1 and M also divides N। अगर M जो है वो N को डिवाइड करेगा तो M जो है वो NQ1 उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। ये बेसिक सा रिजल्ट है। ठीक है, जैसे आप समझ लो, जैसे 2 डिवाइड्स 4 तो 2 डिवाइड्स 8 एज वेल। 2 डिवाइड्स 4 देन 2 डिवाइड्स, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल हुआ 8, सो 2 M डिवाइड्स N, देन M जो है वो NQ1 को भी डिवाइड करेगा। अब इन दो M जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी है डिवीजन की। सो M विल डिवाइड सम ऑफ दीज टू, सो A माइनस NQ1 प्लस NQ1, सो NQ1 से NQ1 कैंसिल आउट हो गया, एंड M डिवाइड्स N, ये पहले से ही हमारे पास है, M डिवाइड्स N एज वेल। सो M डिवाइड्स A एंड M डिवाइड्स N, ये भी प्रॉपर्टी है कि इफ M डिवाइड्स A एंड M डिवाइड्स N, देन M जो है इन दोनों के A और N के HCF को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनको पढ़ लेना प्रॉपर्टीज को, HCF की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो M जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, M जो है वो N को डिवाइड कर रहा है, तो M इन दोनों के HCF को भी डिवाइड करेगा। ठीक, सो देयरफॉर M डिवाइड्स 1, बिकॉज ये स्टेटमेंट में गिवन है A और N का जो HCF है वो 1 गिवन है स्टेटमेंट में, A और N का HCF 1 इज गिवन, सो M डिवाइड्स 1, दिस सिंस HCF ऑफ A and N गिवन टू बी 1, सो M हैज टू बी 1। ठीक है, M डिवाइड्स 1, इसका मतलब कि M को 1 ही होना पड़ेगा। M जो है वो -1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि HCF इज ऑलवेज पॉजिटिव, HCF हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, सो देयरफॉर R1 और N का HCF आ गया 1, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, R1 और N के HCF को हमने कंसीडर किया हुआ था, M और M की वैल्यू आ गई 1, सो देयरफॉर R1 और N का HCF आ गया हमारे पास 1, एंड R1 इज लेस देन N एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर R1 किसका मेंबर हो गया, G का, बाय डेफिनेशन ऑफ G। ठीक है, ये देखो G की डेफिनेशन क्या है, वो सारे R सच दैट R का N के साथ R का N के साथ HCF 1 आना चाहिए, और R जो है वो N से लेस होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो आप,
R1 का n के साथ HCF 1 आ रहा है और R1 जो है वो लेस देन n है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब R1 किसका मेंबर हुआ, ग्रुप G का, बाय डेफिनेशन ऑफ G, जिस तरह से हमने G को कंसीडर किया हुआ है. सो R1 इज अ मेंबर ऑफ G. नाउ A इज NQ1 प्लस R1. R1 को इस तरफ ले आओ, सो A माइनस R1 इज NQ1. n जो है वो इस वाले पोर्शन को, n जो है n डिवाइड्स NQ1, n जो है वो NQ1 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है कि n जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा. सो देयरफॉर n डिवाइड्स A माइनस R1. फिर वही डेफिनेशन, n डिवाइड्स A माइनस B इफ एंड ओनली इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो n. उसी का हमने यहाँ पे यूज, इसका मतलब यह हो गया कि दिस A इज कॉन्ग्रुएंट टू R1 मोडुलो n. कौन सी डेफिनेशन का हमने यूज किया, ये वाली डेफिनेशन, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स A माइनस B. इस वाले रिजल्ट का हमने यूज किया यहाँ पे. सो दिस A इज कॉन्ग्रुएंट टू R1 मोडुलो n. ठीक है. Now we have to show A raised to the power phi of n is congruent to R1 raised to the power phi of n modulo n. This is what we have to show. ठीक, यानी इसका मतलब ये है, बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये शो करना है दैट n शुड डिवाइड A raised to the power phi of n माइनस R raised to the power phi of n. इसमें कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम, वही n डिवाइड्स A माइनस B इफ एंड ओनली if A is congruent to B. तो अगर हम ये शो करने के लिए हमें, अगर हम ये शो कर देते हैं तो इसका मतलब है ये है, तो हमें क्या शो होना है कि n डिवाइड्स A रेज़ टू पावर फाई ऑफ n माइनस R रेज़ टू पावर फाई ऑफ n. अब सिंस n डिवाइड्स A माइनस R1, सिंस n डिवाइड्स A माइनस R1, तो n जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा. क्यों, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, A n माइनस बी एन इज नथिंग बट A माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे भी कुछ एक टर्म आती है, लंबा सा एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, उस एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं देना है. सो n अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि n जो है इस पूरे फैक्टर को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, n अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो n जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा. तो सिमिलरली इसकी जगह क्या होगा, a की रेज़ टू पावर फाई ऑफ n माइनस r रेज़ टू पावर फाई ऑफ n इज नथिंग बट, यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस इज विल बी a माइनस r1 एंड टू समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा. तो n इसको डिवाइड कर रहा है तो n जो है वो इसको भी, इस वाले पोर्शन को भी डिवाइड करेगा. सो n डिवाइड्स a रेज़ टू पावर फाई ऑफ n माइनस r1 रेज़ टू पावर फाई ऑफ n. तो इसका मतलब ये हुआ, बाई दैट डेफिनेशन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b. तो a रेज़ टू पावर फाई ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू R1 फाई ऑफ n मोडुलो n. अब R1 बिलोंग्स टू G, इट मीन्स दैट R1 रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ G इज 1. ये कोरोलरी है लैग्रेंजेस थ्योरम की, दैट इफ A बिलोंग्स टू ग्रुप G देन A रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ G विल बी आइडेंटिटी. है ना, कोरोलरी ये, A बिलोंग्स टू G इफ एंड ओनली इफ A रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ G इज आइडेंटिटी. देख लेना आप, ये कोरोलरी लैग्रेंजेस थ्योरम की मैंने करवाई भी है. सो R1 बिलोंग्स टू G, इट मीन्स दैट R1 रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ G विल बी 1. ऑर्डर ऑफ G क्या है, फाई ऑफ n. सो R1 रेज़ टू द पावर फाई ऑफ n विल बी 1, माइनस 1 को इस तरफ ले तो R1 फाई ऑफ n माइनस 1 विल बी 0. अब n जो है वो 0 को डिवाइड करता है, n डिवाइड्स 0 बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी. सो 0 को डिवाइड करता है, n 0 किसके इक्वल है, 0 इसके इक्वल है. सो n डिवाइड्स दिस एज वेल. सो वही डेफिनेशन लगानी है यहाँ पे, कौन सी वाली, n डिवाइड्स a माइनस b इफ एंड ओनली इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n. तो इसका मतलब ये हो कि R1 रेज़ टू पावर फाई ऑफ n माइनस R1 रेज़ टू पावर फाई ऑफ n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस 1 मोडुलो n. सो ये 2 हो गया, वो 1 हो गया. सो n जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा था, n इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा. सो n डिवाइड्स सम ऑफ दीज टू, इन दोनों को सम को डिवाइड करेगा. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो विल बी लेफ्ट विद n डिवाइड्स a रेज़ टू फाई ऑफ n माइनस 1. ठीक, तो इसमें फिर वही डेफिनेशन, कितनी बार अब डेफिनेशन हमको हम पढ़ चुके हैं. तो इसका मतलब यही है कि n डिवाइड्स a माइनस b इफ एंड ओनली इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n. उसी डेफिनेशन का फिर से यहाँ पे यूज करना है. इसका मतलब है कि a रेज़ टू पावर फाई ऑफ n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो n. दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव एंड we have proved that this is the Euler's theorem which we were discussing. ठीक है.